us Mr. Ramesh Agrawal sir, who is CMD of the Agrawal Packers and Movers. So thank you sir, thank you for accepting our invitation and motivating our student with your thoughts. Really, this session will be a great with your thoughts. Also, I'm thankful to Mr. Jaswinder Singh Ahluwalia, who has taken this initiative to arrange this particular session, who is Group President of Agrawal Packers and Movers Limited. I'm really thankful to Ahluwalia sir for your initiative to give chance for our student to get motivated by Mr. Ramesh Agrawal sir. Thank you sir. So Symbiosis Skills and Professional University, which was, you know that it's a premier group, Symbiosis Group, who is heading many number of institutions across the country, also across the globe. So our students being motivated go through the skills and the professionalism which is imparted in this campus. Basically, this is the first university in Maharashtra which is based on the skill-based education. So government of Maharashtra has given permission to start this university in 2017, and now our first batch is in the final year. So we are having here 30% of theory and 70% of skills and practicals across all the programs. We are having various schools over here, like School of Mechatronics Engineering, whose students are there in this today's session. So we are having School of BBA, in which we are having BBA in Logistics, BBA in Ports and Terminals, as well as BBA in Digital Marketing. So we are having students of BBA also in today's session. Also, we are having BSc Data Science program, whose students are also participating in today's event. Also, we are having BTech Automobile, BTech Construction Management, and School of Architecture. Along with this, we are having a unique program, which is BSc Beauty and Wellness. So all these programs are directed towards the skill-oriented approach, and I'm happy that today we are having this the eminent personality like Mr. Ramesh Agrawal with us. So definitely, Symbiosis Skills and Professional University student will be getting more knowledge and more confidence for their upcoming ventures. So thank you for your presence here. थैंक यू डॉक्टर साहब. इनफैक्ट जब भी मैं स्टूडेंट से बात करता हूं तो मेरे को ऊर्जा मिलती है, और डेफिनेटली आज भी मैं ऊर्जित होकर यहां से जाऊंगा, क्योंकि ये सब आज जो है इनमें से पता नहीं कौन कहां किधर, थोड़ा सा उनको यदि हाथ लग जाए किसी के कंधे पर तो पता नहीं कौन कहां किधर जा सकता है. ये मेरा मानना है. क्यों कि मैं भी इनकी तरह कभी एक ऐसी स्टेज पे था, बिल्कुल गांव में पढ़ा हुआ, 50 पैसे की फीस से, और कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं उस मुकाम से इस मुकाम पे पहुंच जाऊंगा. मगर किसी ऐसे अच्छे प्रोफेसर की नजर मेरे ऊपर पड़ गई, उन्होंने मेरे को चयन कर लिया, एक जगह बना दी और कुछ ऐसी चीज सिखा दी जो जिंदगी भर मैं उनको याद करता हूं, और आज मेरे को पहुंचा दिया. अक्सर हमारे दिमाग में क्या रहता है कि एक वो आदमी जो अच्छे परिवार से होगा, अच्छे स्कूलों से पढ़ा लिखा होगा, या किसी बिजनेसमैन का लड़का होगा, या किसी धनाढ्य परिवार से होगा, तो वही आगे बढ़ता है. मगर मेरा ये मानना है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ते होंगे, मगर बहुत ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल कमजोर वर्ग से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, वो भी उससे कई गुना आगे बढ़ते हैं. मगर अलबत्ता यदि उनके पास में कुछ ऐसे पारस जैसे गुण हो और वो उनको कैरी करे तो दे कैन डू इट. तो आज इस सेमिनार में मैं आपसे केवल एक एक्सपीरियंस की चर्चा करूंगा, और सिम्बोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के इस प्रांगण में जब आप लोग पढ़ रहे हो तो मैं सबका एक तरह से आज आपसे बात करने का मौका मिला, उनका मैं आभार प्रकट करता हूं और मेरी बातचीत में शुरू करता हूं. आप हम जब कोई भी पढ़ते हैं तो एक मेरा मानना है कि लाइफ इज 10% हाउ यू मेक इट, 90% हाउ यू टेक इट. एक प्लेटफॉर्म मिलता है किसी को भी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने से, अच्छे परिवार में पैदा होने से.
इसको मेरा ये मानना है कि दिस इज ओनली 10%, हाउ यू मेक इट। और 90% आप यहां से अपने को तैयार करके लेकर जाओगे, खड़ा करोगे, और फिर 14 ईयर्स के बाद जहां मिलेंगे तो दैट इज योर 90%। तो कभी भी ये मान के चलो, अब आप यहां से जब पास होकर निकलोगे, दैट इज ओनली 10% हाउ यू मेक इट। 90% का सफर आपको तैयार करना है। और ये 90% का सफर कैसे तैयार होगा, किस तरह से होगा, मैंने इसमें प्रैक्टिकल जिया है और बारीकी से देखा है, और इसके पास से मैं गुजरा हूं। वो मैं 90% की यात्रा आपको कराऊंगा। इनमें 4 आयाम होते हैं। मैं 90% को 4 भागों में बांटा हूं मैं, और एक एक आयाम के बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा, बतलाऊंगा। पहला आयाम, जब भी कोई भी आदमी कुछ भी यहां से निकलता है तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक कि वो हमेशा कोई जॉब मिल गया, या कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, या कुछ काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बन गए, उद्यमी बन गए, आत्मनिर्भर बन गए, तो वो लोग बढ़ते जाते हैं। हम लोग उसको अपने आप में सेटिस्फेक्शन मान लेते हैं कि अरे लड़का बढ़ गया, बढ़ रहा है। 1 करोड़ का बिजनेस है, अगले साल उसका 1 करोड़ 10 लाख का बन गया, फिर 1 करोड़ 20 लाख का बन गया, तो हम बोलते हैं ये बढ़ रहा है। पर मैं इसको बढ़ने को ज्यादा बहाव नहीं देता, मैं हमेशा चढ़ने को बहाव देता हूं। बढ़ने में और चढ़ने में बहुत फर्क है। दुनिया बढ़ती है 99%, चढ़ता है कोई 1%। तो आप बढ़ते बढ़ते चढ़े क्यों, मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। दुनिया बढ़ती है, और जिस आदमी को चढ़ना हो वो मेरे साथ जुड़े, क्योंकि बढ़ने में चढ़ने में बहुत फर्क है। आज जितने भी तो आप नाम लोगे, अरे वो तो स्टार्ट किया था बिल्कुल जीरो से। धीरू भाई जी की कहानी सुनो, पेट्रोल पंप पे काम कर रहे थे। ओपी जिंदल जी की बात सुनो, वो तो छोटे से कारखाने के अंदर एक वैसे ट्रैक्टर का तासले और कसी बनाया करते थे। तो हर आदमी, उन्होंने बढ़ने का सपना नहीं लिया, चढ़ने का सपना लिया। चढ़ते कैसे हैं, जैसे एक लता है, मनी प्लांट जिसको हम कहते हैं, वो हमेशा बढ़ती है, पर बढ़ती बढ़ती यदि रास्ते में लता के रास्ते में यदि पेड़ ना आए तो वो बढ़ती रहेगी, कभी चढ़ेगी नहीं। और बढ़ती बढ़ती जब रास्ते में कोई ट्री आ गया, पेड़ आ गया, तो वो जो मनी प्लांट है बढ़ने की बजाय चढ़ना शुरू कर देगा। क्यों चढ़ा? क्योंकि उसके रास्ते में पेड़ आया। तो इसी तरह आप भी अपने को चढ़ना है तो आपको भी अपने रास्ते में पेड़ों को उगाना पड़ेगा। वो पेड़ क्या है, मैं ऐसे 4 पेड़ों की बात करूंगा। ये नहीं कि आपने आम का पेड़ उगा दिया, अमरूद का पेड़ उगा दिया, अनार का उगा दिया, चलो अब तो हम चढ़ जाएंगे। वो हमारे इस बिजनेस के अंदर वो पेड़ क्या है, उन 4 पेड़ों की बात करूंगा। आपके अपने जिंदगी में यदि 4 पेड़ उगा लिए तो आप भी बढ़ते बढ़ते चढ़ जाओगे। मेरी अपनी लाइफ की कहानी है जो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले है कि आप कुछ भी सोचो, आउट ऑफ बॉक्स सोचो। नेवर डू डिफरेंट थिंग्स। ऑफ कोर्स क्यों दुनिया करती है डिफरेंट थिंग्स, बट आप करो थिंग्स डिफरेंटली, आउट ऑफ बॉक्स, थिंक बियॉन्ड। जब तक ये आउट ऑफ बॉक्स सोच आपकी नहीं होगी तो आप दुनिया से हटकर नहीं होगे। दुनिया आपको नाम से पहचाने। आप कहीं भी जॉब करते हो, वहां पर 1000 आदमी है, दुनिया आपको 1 महीने के बाद ज्वाइन करने के बाद आपका नाम जानना शुरू कर दे, और ये लोग सोचे अरे वो आदमी है, ये तो कोई उसके लिए मुश्किल नहीं है, ही कैन डू इट। आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाले की ही पहचान बनती है। वहां से आपकी शुरुआत होती है पहचान, ड्यूरिंग जॉब करते हुए। मैं मेरी कहानी सुनाता हूं। मैं भारतीय वायुसेना में 79-80 में एंड में भर्ती होकर चला गया था। 15 महीने की एफडीआई में मैंने मेरी ट्रेनिंग की मद्रास में, और उसके बाद फिर एयरफोर्स स्टेशन श्रीनगर मैंने ज्वाइन कर लिया। जो आज का एरिया, करगिल, थवाइस, लेह लद्दाख, अवंतीपुरा, बारामूला जो आप सुनते होंगे, मैंने उसको बारीकी से देखा है। -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में मैं खूब आराम से रहकर आया हूं। वहां पर फ्लाइंग कंट्रोल में मेरी जिम्मेवारी होती थी। 15 दिसंबर को मैं श्रीनगर पहुंच गया ट्रेनिंग करने के बाद। जब कोई आदमी ट्रेनिंग करके जब पहला स्टाफ के रूप में काम करता है तो उसके मन में बड़ी एक उत्तेजना सी होती है, अरे अब तो अब स्टाफ के साथ काम करेंगे। अभी तक तो अंडर ट्रेनिंग काम कर रहे थे। ट्रेनिंग के अंदर बड़े बॉस होते हैं, ये करो वो करो, जैसे लाइक आपका होता है ना कि हेल्पर की तरह काम लेते हैं।
जब स्टाफ बनते हैं तो यू जस्ट वर्क एज ए कुलीग्स, बड़ी मन में भावना थी काम करेंगे। 15 दिसंबर को पहुंच गया वहां में। पहुंचने के बाद मन में ये सीखा हुआ था वो 4 पिलर। एक कौन सा पिलर? पहला पिलर कि कुछ भी करो, डू थिंक डिफरेंटली, आउट ऑफ बॉक्स सोचो। दुनिया सोचती है, आप उसके अलग ढंग से सोचो, उसके विपरीत धारा में सोचो। अब तभी आपकी पहचान होगी, तभी आपको लोग जानेंगे। 16 दिसंबर को मैंने कहा मेरे सीनियर को कि सर मैं अब आया हूं, बताओ कोई ड्यूटी मैं करना चाहता हूं। उसने कहा कि अभी बर्फ पड़ी है, धीरे धीरे रनवे खाली होगा, आराम से कर लेना, कौन सी जल्दी होगी, 20 साल के लिए साइन कर आए हो भारतीय वायुसेना में, कौन सी अभी जल्दी है, कर लेना। बोला सर अब काम दो ना, मैं आपसे सबसे यंग हूं, आप आराम से अपनी बातें मारो, आपका काम और काम, मैं कर लूंगा काम। 16 दिसंबर हो गए, वही 2 घंटे ऑफिस में चला गया, किसी ने काम नहीं दिया। अरे कर लेना भाई, बहुत, आप एक काम करो, आप अच्छा खाना बना सकते हो क्या? बोला जी खाना तो मैंने कभी नहीं बनाया। चलो ऐसे गर्म कर लाओ। मेरे को इस टाइप के फटीक के काम देने शुरू कर रखे थे। 25 दिसंबर चले गई, 30 दिसंबर चले गई और 31 दिसंबर आ गई। हमारे वहां पर उस टाइम पर सैलरी कैश मिलती थी और मंथ के एंड में मिलती थी। आज पता नहीं शायद मंथ के एंड में मिलती है या आरटीजी मिलती है, बट उस टाइम का 1980 की बात है। तो 31 दिसंबर को उस टाइम पर मेरे को 7 या 8 हजार रुपए तनख्वाह मिली और मैंने रुपए गिनने के बाद 4 हजार रुपए जेब में डाले और 4 हजार रुपए मैंने वापिस उस अफसर के हाथ में दे दिए। उसने बोला ये क्या है? बोला सर मैं 15 दिसंबर को आया था और 16, 17, 18 से लेकर आज तक मेरे को 1 रुपया काम नहीं दिया, तो नो काम नो दाम, मैं तो नहीं लूंगा। जिस दिन मेरे से काम दे देंगे मैं तनख्वाह ले लूंगा। हाँ 4 हजार जरूर लूंगा क्योंकि मैं 15 दिसंबर तक मैंने काम किया है, ड्यूटी पे पहुंचा हूं, ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेन से और से चलकर, ये मेरा हक बनता है। Then he said, do you know Ramesh Agarwal? Is it offense? You will be charge sheeted? बोला सर वेरी वेल आई नो इट, मगर मेरे को एक ऑफेंस भगवान का ऑफेंस भी है कि नो काम नो दाम, वो ऑफेंस मेरे को बड़ा लग रहा है। यदि मैं ले लूंगा तो उसकी अदालत में मैं क्या जवाब दूंगा? आपकी अदालत में तो मैं जवाब दे दूंगा। तो बोला कि आप सोच लो, मैं अदरवाइज आई पुट ऑन चार्ज। बोला जैसी आपकी मर्जी, आई बी। मैंने को चार्ज शीट कर दिया। 1 हफ्ते के बाद मेरी पेशी हुई मेरे कमांडर एस के निगम के पास में। चार्ज पढ़ के सुनाया गया कि इन्होंने अपनी तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया, वापस कर दिए, हेंस ही हैज बीन पुट ऑन चार्ज। कमांडर साहब ने कहा कि क्या कहना आपको? मैंने कहा कि सर मेरे को 16 दिसंबर के बाद 1 रुपया काम नहीं दिया और मैं यही सीखा हूं क्योंकि मेरे को आगे बहुत चढ़ना है, बढ़ना नहीं। चढ़ने में 4 आयाम है। एक आयाम ये भी है कि मैं ऐसा काम करूं जो दुनिया ना करे। यानी कि मैंने कहा कि मैं जब काम दोगे तो मैं आपसे दाम लूंगा, आपसे कल से देना शुरू कर दो। तो कमांडर साहब उस अफसर को बोले कि जेंटलमैन एक बार जाओ, मेरे को इसके अकेले में बात करनी है। और उसने मेरे को हक कर लिया, कहा कि ऐसे ऐसे, क्योंकि उस टाइम पर मैं यंग था, 21-22 साल का, और कहा कि यंग जेंटलमैन ऐसे आदमी मेरे को भारतीय वायुसेना में चाहिए और ऐसे आदमी मिल जाए तो मैं वो फौज खड़ी कर सकता हूं कि जो भारतीय वायुसेना अपने आप में प्राउड होगी टू बी ऐसे लोगों को पाकर। और कहा कि अब कल के बाद आप मेरी कैबिन में एज ए एसओ मतलब स्टाफ ऑफिसर बनकर काम करोगे। जो स्टाफ ऑफिसर के लिए जो पोस्ट थी वो 15 साल के एक्सपीरियंस वाले की पोस्ट होती थी। मेरे को केवल सिर्फ 15 दिन के अनुभव के ऊपर वो पोस्ट मिल गई। कहां तो 15 साल, कहां 15 दिन। एंड आई एंजॉयड विद द बिगिनिंग ऑफ माय सर्विस एज ए स्टाफ ऑफिसर ऑफ माय विंग कमांडर एसके निगम। मैंने कहने का मतलब कि तो मैंने पहला आयाम था कि डू कुछ भी बट आउट ऑफ बॉक्स करो और उसके बाद आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे, अब डेफिनेटली मिलेंगे। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो मेरा पहला जो था आयाम, जो पहला मेरा पिलर था सक्सेस का, मैंने उसको वहां पर यूज किया एंड आई हैड डन इट एंड गॉट इट। दोस्तों इस तरह से मेरी यात्रा शुरू हुई। उसके बाद भी जितने भी जो काम होते हैं, मैं कभी भी हर तरह से दुनिया से हटकर सोचता हूं। क्यों कि दुनिया का भीड़ के अंदर जाओगे तो आपकी क्या पहचान होगी? 135 करोड़ के अंदर दुनिया अपना अपना काम कर रही है, दुनिया बढ़ रही है, क्यों आप बढ़ना पसंद करोगे? मैं तो नहीं करूंगा। छोटी सा एग्जाम्पल था एक, पिछले क्या नाम है अपने, फ्राइडे की बात है, शुक्रवार को दिल्ली में एक डीएलएफ के अंदर एक मॉल्स है,
उसमें मेरा बेटा और बेटे की बहू कुछ सामान लेने के लिए चले गए। उन्होंने कहा पापा क्या लाए आपके लिए? मतलब बेटा थोड़ा सा मेरे लिए हाफ पैंट और कुछ टी शर्ट ले आना, मॉर्निंग में मैं मॉर्निंग वॉक जाता हूँ तो वो नमी हो जाती है, पूरी फुल पैंट पहनता हूं, तो आप वो लेके आना। तो ठीक है। इंपोरियम माल का नाम था। वहां उन्होंने 3-4 पैंट और 3-4 टी शर्ट ले ली। फोन करके पूछा पापा क्या है, वेस्ट का साइज क्या है? मतलब बेटा 32 है। और साथ के साथ मैंने कहा कि 32 तो है, मगर एक ध्यान कर लेना, ये जो आपने कुछ सामान लिया होगा मेरे लिए, इसे मेड इन चाइना तो नहीं है। तो उन्होंने फोन पे कहा कि ठीक है पापा देख लेंगे। जब उन्होंने उसमें से छांटना शुरू किया, आउट ऑफ 6-7 आइटम में 3 आइटम मेड इन चाइना मिल गए। अब उनको यह था कि पापा ने कह दिया कि नो मेड इन चाइना, क्योंकि मैं मंचों पे बोलता हूं कि नो मेड इन चाइना। तो उन्होंने 3 वहां से उसको कहा भाई ये बिल बनाया हो तो काट दो, कि पापा ने कहा है कि ये मैं नहीं लूंगा मेड इन चाइना, मैं तो दूसरी छाटूंगा, अदरवाइज मैं बाद में लेके जाऊंगा। तो 3 उन्होंने आइटम्स उसमें से निकाल कर नीचे रख दी। उनके बाजू में कई लोग और लाइन में खड़े हुए थे। जब इन्होंने 3 निकाली तो दूसरे, चौथे, पांचवें, छठे जो भी लाइन में खड़े थे उन्होंने भी अपना स्टॉक में से चेक करना शुरू कर दिया। किसी की 1 मिली, किसी की 2 मिली, और उन्होंने भी एक एक करके मेड इन चाइना डालना शुरू कर दिया। दुकानदार देखकर बड़ा अचंभित हो गया। उसने कहा कि भाई, मतलब भाई देख, अगली बार है ना ये मेड इन चाइना आपकी दुकान में होगी तो हम आएंगे भी नहीं। और वो बाद में एक स्टोरी बनी और जो कल शायद अखबार में छपने जा रही है। तो मेरा कहने का मतलब कि आप अपनी चीज जो भी करे वो एक आउट ऑफ बॉक्स करे, दिल से करे और आउट ऑफ बॉक्स करे, तब आपकी धीरे धीरे करके एक पहचान बनती है। लोग जानते हैं कि ये आदमी तो कहीं भी खड़ा कर दो, अपनी रास्ते अपने आप बना लेते हैं, भीड़ इनके पीछे खड़ी हो जाती है। तो ये एक मेरा पहला आयाम था, पहला पिलर था सक्सेस का, कि जब भी कुछ भी करे आउट ऑफ बॉक्स करे। दूसरा मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने भगवान को एवरीडे देखो, खुद देखो, उससे बात करो। वो आपको फिर हमेशा गाइड करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा, आपको चढ़ने में मदद करेगा। मगर मैं तो मेरे भगवान को डेली देखता हूं, उनसे बात भी करता हूं, उनसे सुझाव भी लेता हूं, वो मेरी मदद भी करते हैं। आप बोलोगे ऐसा व्यक्ति तो पहली बार देख रहे हैं जो भगवान से बात करता है। मैं एज ए बिजनेसमैन, क्योंकि मैंने व्यापार की कसम खाई है, तो व्यापार बिजनेसमैन का जो भगवान होता है वो उसका भगवान होता है, उसका ग्राहक, उसका क्लाइंट, जो एवरीडे उसके दुकान पे आता है, उसके शोरूम पे आता है, उसकी फैक्ट्री में आता है, एवरीडे वो मिलता है। मैं एवरीडे उससे बात करता हूं, क्योंकि उसी कारण मेरे बच्चे पलते हैं, मेरे 7,000 इंप्लाई है वो पलते हैं, हजारों लोग मेरे जो कनेक्टेड है वो उनका रोजगार चलता है। तो मैं केवल आज तक भगवान माना हूं, तो मंदिर में रखने वालों का मैं जरूर, उनका भी एक दिल में जगह है, मगर सबसे बड़ा भगवान मानता हूं तो मेरे क्लाइंट को भगवान मानता हूं और उनकी सुनता हूं। तो ये मेरा एक सफलता का दूसरा कारण है, पिलर है, कि मैंने मेरे क्लाइंट को भगवान माना है। जब भी क्लाइंट कई बार आपको कुछ कहने आता है, कुछ लड़ने आता है, समझाने आता है, आपसे गुस्से में बात करता है, तो मान के चलो ये भगवान आपको कुछ देने के लिए आया है, लेने के लिए आया। कि सोच समझ आपकी ये है कि आप उसको किस तरह से समझ पाओ। उदाहरण दे रहा हूं मैं एक, हमारा काम है पैकिंग मूविंग का। आपने सुना होगा अग्रवाल पैकर मूव लिमिटेड। घर सामान एक जगह से दूसरी जगह, आज हिंदुस्तान के अंदर हम 1,25,000 लोगों का घर सामान एक साल में शिफ्ट करते हैं, और हिंदुस्तान का नंबर 2 जो आदमी काम करता है वो 15,000 करता है। यानी कि कहां तो 1,25,000 और कहां 15,000। ये किसने किया? वो क्लाइंट रूपी भगवान ने मेरे को खड़ा किया। मेरे में कोई ताकत नहीं थी, उन्होंने सुझाव दिए, उन्होंने कहा, और मैं यहां पर खड़ा हो गया। तो उसी तरह एक क्लाइंट बेंगलोर से दिल्ली घर सामान लेकर आया ट्रांसफर होकर, और जब वो घर सामान लेकर आया तो सीआर पार्क दिल्ली में उसको सामान खाली करना था। खाली करने से पहले उसकी कुछ शर्तें तय थी मकान मालिक के साथ में, कि ये काम होना चाहिए, ये करवा देना, व्हाइट करा देना, पीओपी करा देना, पेंट करा देना, दरवाजे बदलवा देना। जब हमारी गाड़ी उसका सामान लेकर पहुंची तो वो कुछ सामान उसके साथ उसने
किया हुआ नहीं था घर के अंदर कुछ। तो उसने कहा कि कब कराओगे? बोला जी 2-4 दिन लग जाएंगे। तो उसने कहा कि देखो जी हमारे मैनेजर को कि ये मेरी गाड़ी आप ना अपने गोदाम में खाली मत करना, क्योंकि लोडिंग अनलोडिंग होने से सामान टूट जाता है। आपकी जो भी हाल्टिंग होगी मैं यहाँ दे दूंगा, आप इसी घर के सामने खड़ी रखो। हमारे आदमी ने कहा ठीक है साहब, हाल्टिंग लगेगी? बोला जी कोई बात नहीं, हाल्टिंग में दे दूंगा। तय हो गया कि 2000 रुपये पर डे की हाल्टिंग देंगे। उसने सोचा कि 3-4 दिन में ठीक कर देगा, तो 4 दिन का खर्चा 8000 हो जाएगा। वो इस तरह से उस मकान मालिक ने कल करते करते 20 दिन तक वो काम नहीं किया, और 20 दिन की हाल्टिंग होगी 40,000 रुपए। उस सज्जन पुरुष को भी 40,000 रुपए महंगे पड़ गए। हमारे लोगों को फिर नेगोशिएट किया, अल्टीमेटली कोई 1500-1000 रुपए में बात बनी, और उन्होंने वो पैसा देकर माल खाली किया। 1 महीने के बाद आके वो कहते हैं आपके ओनर से मिलना है। बोला जी क्या तकलीफ क्या? बोला जी कुछ भी नहीं, जस्ट मिलना है। उन्होंने मेरे से मिला दिया। उन्होंने कहा कि अग्रवाल जी आपका एक स्लोगन पढ़ता हूं मैं, आप घर तो घर शिफ्ट कराते हैं और किसी का टेंशन भी शिफ्ट करा देते हैं। बोला हाँ ये लिखा हुआ होता है हमारे। तो बोला जी मैंने घर भी शिफ्ट किया, मगर हालांकि ठीक है 40,000 रुपए आपके बनते थे, और आपके कहने पे 20-25,000 रुपए मैं देकर वो माल ले लिया मेरा, मगर मेरे वो टेंशन हुआ। आई फेल्ट लिटिल बिट, क्यों मैं दूं, व्हाट इज माई फॉल्ट? तो बोला जी गाड़ी तो आपकी हाल्टिंग हुई है, अब हम गाड़ी का 20 दिन का कुछ भी ना लेंगे तो किस्तें भी देनी है, ड्राइवर की तनख्वाह भी देनी है, उसकी खुराकी भी देनी है। बोला नहीं मैं ये दोष नहीं दे रहा कि आपकी कोई गलती है इसमें, मगर ऐसा कोई सिस्टम बनाओ, बिकॉज आपने कहा कि टेंशन फ्री शिफ्टिंग कराते हो, तो मेरे ये कहीं ना कहीं टेंशन है, तो आपके इस वर्ड के अंदर कहीं ना कहीं या तो सुधार करो, भाई लाइट्स एंड टेंशन छोड़ के आप टेंशन शिफ्ट कराते हो, बट आपका स्लोगन ठीक करो या कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालो। मैं सोचा कि ये बंदा जो है ये क्लाइंट नहीं है, ये भगवान है, और जब भगवान किसी के दरवाजे पे कुछ कंप्लेन लेके आता है तो मान के चलो आपको कुछ देने के लिए आया है और आपकी उन्नति के लिए आ रहा है। मैंने मेरी टीम बुलाई, मैंने कहा कि देखो ये जो कह रहे हैं क्या करोगे? प्राइम फेसिया क्या होगा कि जी कुछ नहीं होता, ये तो देखो सामान जब हाल्टिंग होगी तो लगेगा। मतलब जी आप उस एंगल से मत सोचो, थिंक डिफरेंटली, कोई इनोवेशन ढूंढो। टीम को काम पे लगा दिया, और 1 महीने के बाद टीम आकर कहती है कि सब अब आगे से चाहे 10 दिन की गाड़ी खड़ी हो, चाहे 15 दिन, चाहे 20 दिन, चाहे 21 दिन, हम किसी से हाल्टिंग नहीं लेंगे। मैं बोला कि फिर अपनी दुकान कैसे चलेगी? बोला जी अपने को भी हाल्टिंग का खर्चा नहीं लगेगा, न गाड़ी खड़ी होगी और न ड्राइवर आइडल होगा। तो बोले क्या किया? तो एक नई स्कीम बनकर आई, उसका नाम दिया हमने ट्रकिंग क्यूब। वो क्या हुआ कि जिस तरह से जो गाड़ी किसी के घर में आती है और वो गाड़ी के अंदर सामान होता है तो गाड़ी को हल्ट करना पड़ता है, हमने सोचा कि जिस गाड़ी के अंदर जो बॉडी होती है जिसमें सामान रखते हैं, यदि मैं उस बॉडी को पोर्टेबल बना दूं नट बोल्ट से, जब भी किसी को हल्ट करना हो वो उठाकर बॉडी उतार दी, वो धरती पर रख दी, गाड़ी अपने काम पर चली गई, ड्राइवर अपने काम पे चला गया। जो बॉडी है वो हार्डली 70 to 80,000 की होती है, गाड़ी 20 लाख की होती है। यदि मैं 20 लाख की गाड़ी हाल्ट करूं तो उसकी कॉस्ट 2000 है। यदि मैं 70-80,000 रुपए की बॉडी ओनली हाल्ट करूं तो इट कॉस्ट ओनली 60 to 70 रुपीज। और 60-70 रुपए मैं नहीं भी लिए तो मेरे को तकलीफ नहीं है, और क्लाइंट ने दे भी दिए तो यू नॉट फील पेन। तो एक नया जन्म हुआ कि हम आगे से किसी का भी घर सामान लेके जाएंगे तो हम ट्रकिंग क्यूब के नाम से जो प्रोडक्ट बनाया है वो हम यूज करेंगे। तो ये एक जैसे आपको दिख रहा होगा, इसका नाम दे दिया ट्रकिंग क्यूब। हमने ट्रक के ऊपर जो कंटेनर बनाए हैं वो कंटेनर पोर्टेबल बना दिए, नीचे इनके नट बोल्ट है, गाड़ी में रखते हैं, विपुट जस्ट इसको बोलते हैं, एक लॉकिंग प्रक्रिया है, तो वो हम लगा दिए। तो इस तरह से हो गया। तो उसके बाद अब क्या होता है, जब किसी का भी सामान आता है हम सिटी से पहले इन कंटेनरों को रखने की जगह बना ली, इसको बोलते हैं ट्रकिंग क्यूब यार्ड, 30 किलोमीटर पहले। और उस अफसर से पूछते हैं कि सर आपका सामान आ गया, आप अपना घर चेक कर लो, व्हाइट वॉश, पीओपी, और इससे एक एडिशन
अपने घर के लोगों से पूछ लो कि भाई पूजा का टाइम क्या है, ताकि हम उसी समय ही आपके घर में आपका सामान लेकर पहुंचेंगे। राहु केतु कहाँ भी कुछ आने हैं, जाने हैं, भिजवाने हैं, यू डू एनीथिंग। तो वो अब हम उन कई लोगों को कहते होता है कि जब घर 3 दिन रोक लो भाई, अभी घर तैयार नहीं हुए, 6 दिन रोक लो, मैं भी गांव में नहीं पहुंचा हूं, तो हम ये कंटेनर हमारे अपने यार्ड में, क्योंकि सारे साधन होते हैं फोकलिफ्ट के उतारने के, उतार लेते हैं। जब वो कहता है उस तारीख को हम उसके घर पे पहुंच जाते हैं, राइट डेट पे, राइट टाइम पे हम रिपोर्टिंग करने लग गए। तो इस तरह से एक नई सर्विस शुरू हो गई हमारी। और इन एडिशन टू दैट हमने फिर क्या सोचा कि कई बार जो ट्रक में सामान आता है 2 बेडरूम का, और ट्रक पूरा नहीं भरता, 60% भरता है, 40% खाली होता है, और वो खाली ही जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति की क्या इच्छा होती है कि मेरे सामान के मैं ताला मारूं, मैं ही चाबी लेके जाऊं, मैं ही मेरे सामने खोलूं और मेरे सामने उतारूं, चाहे खाली जाने दो। और वो थोड़ा सा 15-20% ही डजंट माइंड टू पे एक्स्ट्रा, बट अपना ताला खुद मारना चाहता है। हमने ये पीड़ा समझी कि भाई जितना सामान है, यदि हम उतने साइज के कंटेनर बना दें, तो जो वेस्टेज खाली है वो आधा उसको दे दें, आधा हम इंजॉय करें, तो इसमें क्या होगा। तो हमने उसके बाद 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, बेडरूम विद कोठी, इस टाइप के कंटेनर बना दिए। अब एक गाड़ी के अंदर हम 4 लोगों का सामान ले जाने लग गए। चारों लोग अपना अपना ताला मार रहे हैं, चारों लोग के चाबी खुद के पास है, चारों लोगों का अधिकार है कि जिस तारीख को चाहे उस तारीख को लो। और ये कंटेनर छोटी छोटी गाड़ियों में उनके घरों पे आते हैं, भर के लेके जाते हैं, सेम कंटेनर उनके घर के डोर के सामने ताला लगाते हैं, चाबी जेब में रखते हैं। उसके बाद ये कंटेनर मेरे यार्ड में आते हैं, और यार्ड में आने के बाद फिर एक बड़ी गाड़ी में, जिस तरह के सामने जो गाड़ी दिखाई गई है आपको, इस तरह की बड़ी गाड़ी में चले जाते हैं। और इस तरह से ये हमारा एक नया वर्टिकल खड़ा हो गया। हिंदुस्तान में कोई भी कंपटीटर ने अभी तक ये स्टार्ट नहीं किया, करने की हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि इसमें कई पैरामीटर्स है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो क्लाइंट आपके पास कंप्लेन लेकर आया था, उस कंप्लेन को हमने एक आशीर्वाद के रूप में माना, उसको एक ये नहीं समझा कि पागल सी बात कर रहा है, हमने उसको एक्सेप्ट किया, उस पर काम किया, और एक नया वर्टिकल खड़ा हो गया। तो कंपनी के अंदर 10% से लेकर 15% की तो बैलेंस शीट में इजाफा हुआ, और कंपटीशन कोई छोटा मोटा पहले करता था, और इसके आने के बाद वो जिंदगी भर भी नहीं सोच सकता कि हमारे से कंपटीशन करे। तो कोई भी क्लाइंट आपको देने आता, लेने नहीं आता, अलबत्ता आप समझे। तो सेकंड जो मेरा पिलर था चढ़ने का, वो कि क्लाइंट आपका भगवान है, वो देने आता है, लेने नहीं आता, केवल आपकी सोच समझ का फर्क है। तीसरा जो अक्सर मैं उसको अपनी भाषा में कहता हूं कि जब आपका कोई क्लाइंट के साथ साथ में दूसरा क्लाइंट होता है आपका कर्मचारी। बहुत सी बार हम कर्मचारी की बात जाने अनजाने में अनसुनी कर देते हैं, एक महसूस करते हैं अरे वो तो गलती करता होगा, वो तो फालतू ही बोल रहा होगा। वो भी आपका एक तीसरा पिलर है आपकी सक्सेस का। आपको चढ़ने के लिए तीसरा यदि पेड़ उगाना है तो एक अच्छे कर्मचारी और उन कर्मचारी की आप बात सुने, वो एक तीसरा पेड़ है। बहुत से उदाहरण है मेरी अपनी लाइफ में, पर एक उदाहरण यहां भी मैं आपको दूंगा। 2003 या 4 की बात है। मेरा एक छोटा सा कर्मचारी जिसकी तनख्वाह कोई उस जमाने में 9 से 10 हजार रुपए होगी, वो एक ट्रक भरने के लिए दिल्ली के अंदर फरीदाबाद बॉर्डर पर मोहन कोऑपरेटिव सोसाइटी में भरने के लिए गया। कंपनी थी ओनिडा टीवी वाली, उसका सामान दिल्ली से भरकर कलकत्ता जाना था, और उस गाड़ी का 20-22 हजार रुपए एडवांस देना था। तो ये कर्मचारी गाड़ी में, बस जो होती थी रेड लाइन ब्लू लाइन जो दिल्ली की चलती थी, 22 हजार रुपए जेब में लेकर वहां पहुंचा, और वहां उतरा, और जब ड्राइवर को देने के लिए जेब में हाथ मारा तो हाथ ही हाथ रहेगा, पैसे नहीं मिले। रास्ते में बस में उसकी किसी ने जेब काट ली थी। बड़ा उदास हुआ, चलो कोई बात नहीं, दूसरे पैसे भेजे, गाड़ी को छोड़ दिया, और ये वापिस में ऑफिस में आकर कहा कि साहब मेरे तो 22 हजार रुपए खो गए। मेरे मैनेजर ने कहा कि भाई आपने ध्यान से नहीं लेके गया होगा। साहब जेब में डाले थे।
अब मैं क्या पता लगे किसने आदमी ने कैसे मेरी जेब काट ली। तो अल्टीमेटली कंपनी का क्या रूल है, ठीक है भाई आप अब नहीं तो 1 साल में दे देना, 2 साल में दे देना, किस्तें बना लो, पर 22,000 रुपए तो आपसे वसूल करेंगे। हमारी कंपनी में एक दिन होता है 4 तारीख, उसका नाम है मंथन डे। पूरे देश में ये मंथन डे की प्रक्रिया है हमारे हर ब्रांचों के अंदर। दिल्ली में उस दिन मंथन डे था। खुदा ने खास्ता उस मंथन डे के अंदर जितने लोग फ्लोर पे बैठते उस दिन मैं भी उसको चेयर कर रहा था। हर आदमी अपनी अपनी प्रॉब्लम सुनाता है, उसको सुनते हैं, उसी टाइम उसका निवारण होता है। उसका नंबर आया, उसने कहा कि साहब मेरे 22,000 रुपए खो गए थे, अब मेरे नाम पर लिख रहे हैं, मैं तो 10,000 रुपए नौकरी वाला आदमी जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा, मेरी क्या गलती है। मैंने ये कहा कि चलो आपकी गलती नहीं है, तो आप ये बताओ आगे 22,000 रुपए आपको फिर ले जाने का मौका मिला, कैसे आप इसको बचाओगे। बोला जी मैं ध्यान से लेके जाऊंगा। तो इसका मतलब आप अब ध्यान से नहीं लेके गए। बोला ना जी ध्यान से लेके गया था। तो ध्यान से लेके गया तो चोरी कैसे हुए, आप मेरे को इसका परमानेंट सोल्यूशन बतला दो, तो आपके 22,000 रुपए माफ, और नहीं बताओगे तो कोई नाम पे पड़ेंगे। उसने बोला जी गिव मी 15-20 मिनट। मैं बिल्कुल ले लो, आप जाओ। मीटिंग चालू रही, 20 मिनट वो मीटिंग से बाहर निकला, और 15-20 मिनट के बाद वो वापिस आता है और आके बोलता है कि सर अब कोई भी यदि कैश कैरी करेगा, चाहे बस में लेके जाओ तो कैसे, मेरे नहीं, कंपनी में आज के बाद किसी के पैसे चोरी नहीं होंगे। तो मैंने कहा कि ऐसा क्या किया आपने। उसने अपनी शर्ट निकालकर अंदर बनियान दिखाई, और बनियान के अंदर एक पॉकेट लगी हुई थी। खरं होतं ते चांगले माणूस होते ते, म्हणजे परी आमच्या रुपयाचे आते होते। एक बार बूट करना पड़ेगा कुछ लोगों को, जो होस्ट है उसको ये पावर है वो कर सकते हैं, ताकि क्योंकि वो उसमें वेवलेंथ टूट जाता है ना, थीम थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है। तो उसने कहा कि ये मैं अब इस बनियान की जेब के अंदर रख के लेके जाऊंगा। और बनियान के अंदर जब मेरी माँ ने कहा था कि कोई चीज जब दिल के पास लेके रखते हो तो बेटा वो खोती नहीं, वो चोरी नहीं होती, और आज के बाद चोरी नहीं होगी। साहब रियली आई वंडर्ड, और मैंने उसी टाइम पर 1,000 बनियान लाकर जितने भी कर्मचारी जो कैश लेके जाते थे लाते थे उन सबको बांट दी। और वो दिन है 2003 रहा, 2020 17 साल हो गए, हमारे किसी का पैसा चोरी नहीं हुआ। यानी कि उस इंप्लाई छोटा सा, उसको आप सोचो कि 10,000 रुपए लेने वाले की क्या सोच हो गई, मगर उसके अंदर भी सोच है, वो भी आपको दे सकता है, अलबत्ता हम उसको किस तरह से लें। वो इस तरह से हमारे हर 4 तारीख को ऐसे 5-10 आइडिया जब हम चर्चा करते हैं, मंथन डे में बैठते हैं मीटिंग के अंदर, वी गेट मेनी आइडियाज, और वही आइडिया हम फिर ग्राउंड में एग्जीक्यूट करते हैं और वो हमारी ताकत बनती है। तो मैंने इन आइडिया को एक ताकत मानता हूं, पिलर नंबर 3 मानता हूं कि आप जब कभी भी इस तरह का कोई बढ़ने की सोचते हो तो उनको भी साथ लेके चलना पड़ेगा। ये आपका तीसरा पेड़ है। अब मैं चर्चा करता हूं चौथे पेड़ की। जब आपकी कंपनी एक बढ़ जाती है, थोड़ी सी अच्छी खड़ी हो जाती है, तो हम कई बार भूल जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये तो मेरी मेहनत का काम है, ये तो मेरी अपनी अक्ल का काम है, ये तो हमने रात दिन करके कमाया है, और साथ भूल जाते हैं कि समाज ने भी साथ दिया आपका, प्रकृति ने भी आपका साथ दिया है, कितने लोगों का और देश के कितने कानून का भी आपके साथ है, वो भी साथ है, मिलकर ही आप यहाँ खड़े हुए हो। और आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उनको भी रिटर्न करो, उनको भी वापस करो, पर हम कई बार भूल जाते हैं। जब कंपनी के हमारे 25 साल हो गए थे, तो एक मन में आया कि जैसे कोई गुरु से शिक्षा लेता है, तो जब वो विदा होके जाता है कि गुरु दक्षिणा, तो हमारे भी मन में आया कि गुरु दक्षिणा के रूप के अंदर कुछ अब प्रकृति को, समाज को, जिससे कमाया है उसको कुछ वापस करे। तो सोच बनी कि हम जिस ट्रेड में काम कर रहे हैं, इस ट्रेड के लिए ही काम करें। उस ट्रेड की स्टडी करवाई कि क्या बेस्ट हो सकता है, क्या चाहिए इस ट्रेड को। ये सितंबर 2012 की बात है, 2012 की बात है। सर्वे हुआ, मालूम हुआ कि रोड एक्सीडेंट्स जो हिंदुस्तान में उस साल का डाटा था, क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड से हमने लिया था, 1,38,000 पीपल दे डाई बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, 1,38,000। हमने सोचा कि ये होते क्यों हैं,
ड्राइवर से पूछा कि रोड एक्सीडेंट होते हैं, क्यों होते हैं? उसमें से आपको 1,38,000, 23 या 24,000 इसलिए एक्सीडेंट होते हैं कि जो ट्रक ड्राइवर या कोई ड्राइवर्स होते हैं, तो हु ड्राइव्स द कार एंड ट्रक, दे डोंट स्लीप प्रॉपर्ली। वो सोना तो चाहते हैं मगर सो नहीं पाते। तो हमने सोचा कि भाई सो क्यों नहीं पाते। अगेन वी टॉक्ड विद देम। उन्होंने कहा कि साहब सो तो जाएंगे मगर हमारे को नींद ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमारे को जब गाड़ी ढाबे पर या पार्किंग में खड़ी करते हैं तो डीजल की चोरी, बैटरी की चोरी, स्टेपनी की चोरी, माल की चोरी, त्रिपाल की चोरी, रस्से की चोरी, पैसों की चोरी, कई बार पुलिस के डंडे। सो वी वांट टू स्लीप, वी डोंट स्लीप बट वी टेक ए रेस्ट ऑफ कोर्स 8 आवर्स। एक आदमी अप्रोक्सीमेटली केवल 3 घंटे ही सो पाता है। आप सोच सकते हो कि एक आदमी स्वस्थ को 6 घंटे से ऊपर नींद चाहिए और 3 घंटे ही सोएगा तो क्या करेगा? वो एक्सीडेंट ही करेगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई आप 3-3 घंटे सोते हो तो आखिर में नींद पूरी कैसे होती है आप लोगों की? तो एक ड्राइवर ने अपने जेब से एक टैबलेट निकाल कर दिखाई, बोला जी काली गोली खाते हैं तो नींद मर जाती है। वो क्या थी काली गोली पता है आपको? वो थी चर्च टाइप की एक ये होती है ना अफीम, और स्लोली दे बिकम अफीम ची, और उनकी लाइफ आम आदमी से बदल जाती है। हम 77-78 वर्ष की औसत आयु में जीते हैं, वो केवल 66-67 में मर जाते हैं। 10 साल पहले दे डाई कंपेयर टू आम आदमी। वो उनका लाइफ बन जाता है। तो हमने सोचा जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ काम किया, जिनके कारण हम खड़े हैं, वो एक ड्राइवर तो है जिन्होंने हमको आज एसी गाड़ी दिला दी, एसी ऑफिस दिला दिए, अच्छे खासे घर दिला दिए। तो उनके लिए हम काम करें। तो दोस्तों नई सोच काम भी करना है। तो आपको मैंने कहा था कि एनीथिंग विच यू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो दुनिया उसको सोचे आप उसको कई गुना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचकर काम कर डालो, भीड़ का हिस्सा मत बनो। तो हमने क्या किया कि एक निंद्रा दान केंद्र खोला। नींद का दान, स्लीप का दान। आपने अन्न का दान, धन का दान, कपड़ों का दान, पैसों का दान, भूमि का दान तो सुना होगा, मगर मेरे ख्याल में नींद का दान पहली बार सुना होगा। एक नया प्रयोग इंदिरा दान खोला। इसमें होता क्या है कि हमने एक जगह सेलेक्ट करी जयपुर और अजमेर के बीच में, NH8 के ऊपर, जहां 32,000 ट्रक्स पर डे अप डाउन करते हैं। गूगल में चेक करना, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट प्रोन एरिया ऑफ द इंडिया, दैट इज द दुद्धू, जहां हमने केंद्र खोला। और वहां पर एक 50 एकड़ का टुकड़ा लेकर 10-12 एकड़ को डेवलप करके 500 चारपाई, 500 पंखे, 500 कंबल, 10 लैट्रिन बाथरूम एयरपोर्ट जैसे, 10 नाई, कपड़े धोने की मशीनें, एम्बुलेंस, गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था, गार्ड्स, सारी फैसिलिटी वहां लगा दी उन ड्राइवरों के लिए। कोई भी ड्राइवर हिंदुस्तान का वहां जाए और कहा कि ड्राइवर आपको करना क्या होगा, यू जस्ट फिल अप वन फॉर्म कि मैं 3 घंटे और ज्यादा सोऊंगा, और ये आपने भर दिया तो आपको ये सारी फैसिलिटी फ्री, सब फैसिलिटी, आपको 1 रुपया चार्ज नहीं होगा। और इस तरह से वहां पर 400 ड्राइवर पर डे सोने लग गए, महीने में 12,000 सोने लग गए। और आप यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि इस सोने से महीने में एक केंद्र में 30 जाने अदरवाइज जाती थी वो बचने लग गई। एक नया काम शुरू हो गया। जब इसकी चर्चा देश विदेश में पहुंची तो एक सत्यमेव जयते एक आता था पहले, आमिर खान का, उन्होंने भी यहाँ स्टडी करने के लिए भेजा। एक दिन की जो उन्होंने एपिसोड दिखाई थी वो हमारी इस केंद्र की दिखाई थी। आई अहमदाबाद के लोगों ने इसकी केस स्टडी करी, वो भी किसके ऊपर किताब लिखी उन्होंने कि ये सोच कैसे बनी, जो एक CSR 2012 में तो सरकार की तरफ से जरूरी भी नहीं थी, फिर भी उस बंदे ने कर पाई। और इस तरह से हमने एक चौथा पेड़ उगा दिया। इस पेड़ का भी फल इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया, अब और कुछ भी मिलना होगा। तो इस तरह से मिलना शुरू हुआ। तो मेरा सबके ये कहना है कि हम अपने काम करते हुए बढ़ते जरूर हैं, मगर बढ़ने में विश्वास न रखकर चढ़ने में विश्वास रखो। चढ़ने के लिए काफी पेड़ होंगे, जिसमें से मुख्य 4 पेड़ों की मैंने यहाँ पर आपको चर्चा की है। ये मेरी अपना एक्सपीरियंस है कि मैंने 4 पेड़ों को लगाकर आज उस छोटे से 1 रुपए से व्यापार करते हुए, क्योंकि मैं भारतीय वायुसेना में जब नौकरी छोड़कर आया था तो सब वारविडो को देकर मैं, मेरी एक वर्दी, एक सूटकेस, एक बेल्ट, एक टोपी जो मैं पहनी हुई हूं और एक टिकट
लेकर मेरे घर में था, और उसके बाद उस 1 रुपए से मैंने अपना काम शुरू किया, और धीरे धीरे मेरे पास एक पारस था, वो मैंने आपने कहा कि 4 पेड़ वाला पारस, ये 4 गुण वाला पारस, उसको मैंने यूज किया, उसको प्रैक्टिकल किया, और उसी ने मेरे को यहाँ पर खड़ा कर दिया। तो मैं सब लोगों को ये कह रहा हूं कि जब आप इसमें आज सुन रहे हैं तो किसी एक चीज को तो आप चुरा लेना, देख लेना, डेफिनेटली आपका जीवन बदलेगा। और इसी वाक्य के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। मैनेजमेंट को मैं धन्यवाद देता हूं, आप लोगों ने सुना उसका मैं दोबारा से आभार। और किसी के क्वेश्चन आंसर हो तो यू आर ऑल ओपन। और मेरे को बड़ी खुशी होती है कि आज के ये बच्चे जो सुन रहे हैं, जैसे आज आप लोगों की संख्या है 174, इसमें से यदि 10 आदमी भी कहीं चढ़ गए तो आपके मैनेजमेंट स्कूल को तो खुशी होगी, पर उसके बराबर की खुशी मेरे को भी होगी, क्योंकि थोड़ी सी बस बच्चों में अपने को ये बदलने की जरूरत है, एक दिमाग में ये डालने की जरूरत है कि शहरी आदमी, पैसे वाले का बच्चा, एक अच्छे उस परिवार का बच्चा ही आगे बढ़ता है, मतलब ये बिल्कुल भूल जाओ। आप गांव का बच्चा उससे आगे बढ़ता है, अलबत्ता कि आपके पास कुछ भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण हो, बस उसको एग्जीक्यूट कर डालो, फिर पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। सबको जय हिंद। हेलो सर। सर हेलो जी जी मुझे आपसे सवाल था सर कि अब जब आपके जो ट्रक्स है, अभी आपको कभी ऐसा केस आया कि कोई भी ट्रक ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर इज इंचार्ज मतलब कोई एक्सीडेंट में इंजाम मतलब कुछ चार्ज लगा हो एक्सीडेंट का, तो आपने कोई एक्शन लिया क्या सर? मतलब इस हिसाब से कभी आपका ऐसा केस आया क्या सर कि कोई ट्रक ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहा हो, या फिर कुछ ऐसा केस आया क्या सर आपको? हमारे पास टोटल 1500 ट्रक है, और हमने 1500 ट्रक में से हर ट्रक के 40 ट्रक के ऊपर एक एक ट्रक मालिक करके हमने बना रखे हैं, और फिर 120 के ऊपर एक फ्लीट मालिक है, और सभी वर्टिकल के ऊपर एक हेड है जो बम्बे में बैठता है, गायत्री झा मैडम है, शी इज हेडिंग दिस ऑल 1500 ट्रक्स एज ऑन टुडे। तो उनके वर्टिकल उनके 40 वाले के पास आता है। कई तरह के केस होते हैं। अब 1500 ट्रक ड्राइवरों में से, क्योंकि ट्रक के ड्राइवरों में एक आदत सी है शराब पीकर गाड़ी चलाने की, हम जब उनको भर्ती करते हैं, भर्ती का जो फॉर्मेट है उसमें सब लोग ना ना यस यस कहते रहते हैं, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं 10-15% लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो ये कर लेते हैं। जब मालूम होता है उसके बाद तो एक्शन हमारा एक ही है, उनको किस तरह से कंधे पे हाथ लगाकर कोशिश होती है कि उनको बदलो, बहुत कोशिश होती है बदलो उनको। अब किस तरह से बदलो, कैसे बदलो, उसका एक हमारा अपना मैनुअल बना हुआ है। आज हमारे ट्रक ड्राइवर को हमारे जो गाड़ी मालिक और कंट्रोल रूम जो जिसको हम कहते हैं जो फ्लीट इंचार्ज, वो फोन करके बोलता है कि अरे होशियार सिंह हैप्पी बर्थडे। वो बोला जी ये क्या होता है? बोला जी आज तुम्हारा जन्मदिन है। बोला अच्छा जी, वो तो मेरे को तो नहीं पता था। बोला जी आपके जो डीएल के अंदर है ना, आपका आज की तारीख थी डेट ऑफ बर्थ की, जन्मदिन की, तो हमने वहां से निकाला। और आज एक काम करना होशियार सिंह, तुम घर पे जाओ ना, एक मिठाई का डब्बा लेके जाना, इसके जो 300 रुपए होंगे वो मैं पेमेंट करूंगा आपको। तो होशियार सिंह बड़ा खुश हो जाता है। उसने कभी जिंदगी भर कोई उसकी न तो पत्नी ने कभी बर्थडे गिफ्ट दिया, ना उसके बच्चों ने दिया, उसको भी नहीं पता था मेरा कब है। और धीरे धीरे वो क्या होता है, उस आदमी का फैन बन जाता है जिस आदमी ने उसको बर्थडे किया। अब उसके आदमी से थ्रू हम उसको फिर बदलाव करना शुरू करते हैं। अरे होशियार सिंह ये छोड़ देना, हाँ सर बाबूजी छोड़ दूंगा, होशियार सिंह ये कर देना। हाँ, तो आप कैसे शुरुआत करते हैं, ये एक बहुत बड़ा एचआर का मैटर है, बट एचआर अपनी किताब में पढ़ा हुआ करते हैं, बट हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो इस तरह से केस आते हैं, उसको रिजोल्व करते हैं। ऐसी बहुत जैसी एपिसोड होती है कि कुछ मैनेजमेंट की अपनी गलती होती है, उसको इंस्ट्रक्शन बराबर नहीं दी जाती, तो वो वहां मैनेजमेंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की प्रक्रिया हमारे चलती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। Any questions from anyone? They may ask.
किसी को कोई क्वेश्चंस है, कोई क्यूरी है तो वो पूछ सकते हैं सर से आप। हेलो सर। जी यस सर, आपने जैसे बोला कि लाइक हर बार आपको जैसे अलग अलग चुनौतियां आती गई या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आते गए तो आपने उस वे में उसको अलग तरीके से सॉल्व किया, बैठ के कॉन्वर्जेशन किया आपके एम्प्लॉयज के साथ और आपने उसको सॉल्व किया। तो अभी जब कोविड-19 आया और जब पूरे इंडिया में लॉकडाउन था तो उससे क्या इफेक्ट पड़ा इस मूवर्स एंड पैकर्स में, इस बिजनेस में? जैसे कि 25 तारीख से लॉकडाउन था, 25 मार्च, 26 मार्च, 27, 28, 30 हमारे अप्रोक्सीमेटली 65 करोड़ के रुपीज के अंदर ऑर्डर बुक थे। बस सभी ऑर्डर्स कैंसिल हो गए क्योंकि किसी के कॉलोनी में हमारे मैन पावर पैकर्स सब जब लॉकडाउन में मूव करना बंद कर दिया, एज लाइक कर्फ्यू हो गया, तो जा नहीं सकते। और 3 दिन के बाद हालांकि एसेंशियल कम्युनिटी को हमारे को मंजूरी मिल गई थी कि आप एसेंशियल कम्युनिटी भेज सकते हो। हाउस होल्ड एसेंशियल कम्युनिटी से बाहर था। कुछ दिन के बाद हालांकि हमने उनको रिक्वेस्ट करके करवा लिया, तो मार्च के जब 6-7 दिन का बिजनेस खत्म, अप्रैल में कोई मूव नहीं हुआ किसी कीमत पे, और मई में कुछ लोग स्पेशल परमिशन लेकर मूव करना शुरू किया। तो इस तरह से जो एक मार्च, अप्रैल, मई का महीना वो एक बड़ा क्रूशियल निकला। फिक्स खर्चे किसी कंपनी के लिए वो चालू रहेंगे बिकॉज यू हैव टू पे इंस्टॉलमेंट ऑफ द ट्रक्स, यू हैव टू पे सैलरी, यू हैव टू पे रेंट, यू हैव टू पे इंश्योरेंस प्रीमियम, यू हैव टू पे मैनी थिंग्स। सपोज करो कंपनी लाइक मी 15 करोड़ रुपए महीने का जो रूटीन का खर्चा था, इट हैज टू कंटिन्यू, इट हैज टू रन, वो हमको पेमेंट ही करना है। तो 2-2.5 महीने का 30-32 करोड़ रुपए का, जैसे हम बैलेंस शीट के हिसाब से कह सकते हैं, इट इज अ डाइट लॉस। बट चीजें क्या हो गई कि इसके कारण दूसरे, क्योंकि अकेला ये नहीं कि मेरी कंपनी को नुकसान होगा, ये सभी कंपनी को नुकसान होगा। और इस नुकसान के अंदर कुछ कंपनी ऐसी ही थी जो ये इतना नुकसान सह नहीं कर पाई और मैनी पीपल दे नाउ शट डाउन। अब उनके शट डाउन के बाद जो बिजनेस खड़ा होगा, क्योंकि बिजनेस को तो चलना है, वो बिजनेस कौन लेगा? जो खड़े रहेंगे। तो ये घाटा भरपाई ये अगले 3 महीने में कवर हो जाएगी। तो कभी भी जो होता है ना, लाइक एक अभिशाप भी होता है, साथ के साथ उसमें अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। और इन 3 महीने के अंदर जो वर्क फ्रॉम होम हुआ और टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ, वो इतना ज्यादा हो गया कि जो हमारे 15 करोड़ रुपए के फिक्स एक्सपेंडिचर थे, यू विल सरप्राइज टू नो दैट हमने करीबन 8 करोड़ में लेकर आ गए। 7 करोड़ रुपए महीना हर महीने। अब 3 महीने छोड़कर जो नेक्स्ट 9 महीने है, उसमें हर महीने 6 या 7 करोड़ रुपए महीना हमारा बचना शुरू हो गया। तो वो बैलेंस शीट को वो ठीक कर देगा। तो काफी चीजें ऐसी होती है कि आप उसको यदि अगेन सारी टोली के साथ, टीम के साथ बैठकर जब चर्चा करते हो, बात करते हो, तो थिंग्स कम आउट। आप अपने दिमाग में एक थोड़ा सा सोच पाओगे, बट काफी दिमाग हो जाओगे तो ज्यादा सोच पाओगे, और उस तरह ज्यादा सोल्यूशन मिलेंगे और ज्यादा लाभ होगा। इस तरह से हमने इसका लॉकडाउन के अंदर लाभ उठाया। ओके, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर, आई एम ओम देशमुख। आई हैड वन क्वेश्चन सर। जैसे आपने जब पैकेजिंग वगैरह चालू किया, सो मार्केट में ऑलरेडी जैसे ब्लू डार्ट हो गया, बाद में फिर डिलीवरी वगैरह हो गया, तो वैसे और भी कंपनीज थी। सो टू सस्टेन इन द मार्केट आपको समथिंग उनसे बेटर प्रोवाइड करना था, या फिर आपको कस्टमर्स मिले इसके लिए आपको अच्छी सर्विस देनी थी। सो जो ये कंपनीज थे उनके साथ कंपटीशन के लिए आपने क्या स्टेप्स लिए टू ओवरकम दोस कॉम्पिटिशंस? आपने सबसे पहले तो एक स्टडी करनी होती है। जब कोई भी काम करे, उस काम के अंदर, जब मैं कोई काम कर रहा हूं, क्या उसमें मेरे उस काम में शुरुआती की प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम की शुरुआत है? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, इनिशियल प्रॉब्लम और प्रॉब्लम की इनिशियल, शुरुआत की प्रॉब्लम या प्रॉब्लम की शुरुआत? तो आई कुड स्मेल इट। बेस्ट ऑफ माइंड मैंने देखा कि शुरुआत की प्रॉब्लम है। अब शुरुआत की प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर मैं कैरी कर रहा हूं काम। हिंदुस्तान क्या होता है कि घर सामान को आई हैव मेड ए रूल, और नॉट ओनली यहां, जब आपका मद्रास में सामान उतरेगा उस टाइम भी मेरा आदमी जूते पहनकर नहीं उतारेगा, वो भी
पहले जूते निकालेगा, हाथ साफ करेगा, फिर पूजा के सामान वाला कार्टन उठाएगा एंड वो धरती साफ करेगा जहां पर पूजा का सामान रखना है जल से, और फिर आपका पूजा का सामान रखेगा। और इसी तरह यहाँ पर भी पहले जूते निकाले जाते हैं, फिर साफ होते हैं हाथ, और उसके बाद वो बंधु उसके ऊपर पूजा का सामान मूर्ति पैक करता है और उसके ऊपर एक स्टिकर लगाता है जिसके ऊपर ओम सत, इस तरह के सभी तरह के चिन्ह रहते हैं उसके ऊपर। और वो आज के बाद, उस दिन के बाद टी.एन. शेषन जी का ही नहीं, हिंदुस्तान में किसी का भी भगवान नाराज नहीं हुआ, वो हमने इमोशन में डाल दिया। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो लोगों का दिल जीता। हमने सामान कैरी नहीं किया, हमने उनको जीता। और जो दिल जीतता है, आप लोग भी समझते हो, उसको कोई भूल नहीं पाता। और इस तरह से वो जो चली हुई एमएनसी कंपनियां थी, राइटर्स, अलाइड, सोनसो, वो सब पीछे रह गई। अब उनकी कोई जगह ही नहीं है। आज जो पीएन राइटर 1987 में जब हमने शुरू किया था तो वो राजा था। आज वो पूरे हिंदुस्तान में 2000 पैकिंग करता है और हम 1,25,000 पैकिंग करते हैं। तो कहां तो वो रह गए, कहां हम रह गए। तो मैं ये कहता हूं कि आपको केवल नब्ज पकड़नी है कि क्या चाहिए बाजार को, लोगों को क्या चाहिए, वो जो चाहिए वो दो आप। बस मेरा तो इसी सहारे के ऊपर मैं खड़ा हुआ। थैंक यू सो मच सर। हेलो हेलो जी सुन रहे हैं। जय हिंद सर, मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ इंजीनियरिंग का। जी। मेरा एक सवाल था कि जब आप एयरफोर्स के करियर के बाद इस फील्ड में आए तो वो कैसे है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपको पता कैसे चला कि यही वो इंडस्ट्री है? आपने ये कैसे डिसाइड किया कि जिसमें आपको कुछ करना है? क्योंकि मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को ये काफी बड़ा सोचने में डिफिकल्ट जाता है कि उनको किस इंडस्ट्री में अपना योगदान दे। मैं 79 में जब भर्ती हुआ तो मेरा एक दिल दिमाग में था कि मैं 5 और 6 साल ही डिफेंस में काम करूंगा। मेरा इट्स टू लर्न फ्रॉम द डिफेंस, और डिफेंस को मैं बारीकी से देखूं, बॉर्डर को मैं बारीकी से देखूं। वो केवल मेरा सपना जब पूरा हो पाता जब मैं डिफेंस में जाता, और मैं उसी लिए डिफेंस को सिलेक्ट किया। मेरा कोई 25 साल 20 साल नौकरी करने का वहां मन नहीं था, बिगिनिंग से नहीं था। जब मेरी किताब मैंने लिखी हुई है कि हाउ टू ज्वाइन डिफेंस, तो उसी में मैंने लिखा है कि आई विल बी सर्विंग ओनली 5 to 6 years, क्योंकि मेरे को मालूम है 5-6 साल के अंदर जो मेरे को देखना देख लूंगा, उसके बाद मेरे को वहां करने के लिए कोई नया नहीं है। क्योंकि वहां पर एक सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं। आप ज्यादा भी सोचोगे तो वो आपके बाउंड्री से बाहर सोचोगे। जैसे कि मैंने 15 दिन की तनख्वाह नहीं ली, काम नहीं किया, तो मेरी चार्जशीट बन गई। तो इस तरह से मेरे ने सोचा हुआ था। और 5-6 साल के बाद मैंने बहुत कुछ सीख लिया डिफेंस से, बारीकी से बारीक मैनेजमेंट सीख लिया, डिसिप्लिन के बारे में सीख लिया, वैल्यू फॉर टाइम सीख लिया, बहुत सी चीज सीखी मैंने। उस सीखने के बाद मेरे पास एक तरह से एक डिग्री होती है ना, आप जब पढ़ रहे हो तो एक डिग्री आपको ये देंगे, मार्केटिंग एमबीए, इंजीनियरिंग एमबीए या सोनसो एमबीए। मैंने वहां क्या सीखी? मलकियत एमबीए, मलकाना एमबीए। अब आप पूछोगे मलकाना एमबीए क्या होता है? एमबीए ओनरशिप, यानी कि एक मालिक बनने की एमबीए, वो मैं सीख कर आया। क्योंकि ऐसे ऐसे काम थे जो आप नौकरी के टाइम पर कहोगे क्या जरूरत है करने की। आपको सपोज करो रूम से बाहर निकल रहे हो, गलती से कोई आपकी ड्यूटी लगी है कि आप कमरे बंद करके रात में जाना, वापिस जाना। जैसे 20 बच्चे होते हैं, आपके तो चपरासी होते हैं, करते होंगे, बट हमारे चपरासी नहीं होते। हमारे में से किसी एक आदमी को ड्यूटी लगती थी कि इस हफ्ते आप लाइट, पानी, बिजली, पंखे सब बंद करके जाओगे। लास्ट मैन बीइंग नोन एज ए की ऑर्डरली कहते थे हमारे वहां पर। अब मैं चला गया और जाने के बाद देखा, अरे उस टाइम पर लाइट नहीं थी, पावर नहीं थी, तो लाइट, बिजली मैं बंद करना भूल गया। अब मेरे रूम में आकर देखा, अरे लाइट बिजली तो जल रही है, वहां टाइम लाइट आ गई। जब देखा तो अब क्या करोगे, वो 3 किलोमीटर दूर है आपका सेक्शन और पैदल जाना होता है। क्या जाकर बंद कर आओगे या अगले दिन जाकर 10 मिनट पहले बंद कर आओगे? जैसे कि एक उदाहरण बताता हूं, कोई दुकान का मालिक है या शोरूम का मालिक है, वो इसी तरह लाइट, पानी, बिजली बंद करने भूल गया, अपने घर चला गया। रात को जाकर ध्यान में आता है उसके, और ये तो भूल गया। वो क्या करेगा? वो वापिस आएगा और बंद करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो अपने शोरूम का मालिक है। और जो पहले केस में वो क्यों नहीं आया?
क्योंकि वो एक नौकर है। तो मैं कभी भी ऐसे कियोडली भी था और मेरे 1-2 केस हुए तो मैं वापिस आकर बंद किया। तो मेरे पास कौन सी डिग्री थी? क्योंकि जो वापिस आकर बंद किया वो कौन? मालिक। जो नहीं किया वो नौकर। तो मैं नौकरी करते हुए भी मेरे पास एक मलकाना की डिग्री मिल गई, MBA मलकाना। और जब मेरे को कॉन्फिडेंट हो गया कि तुम मालिक की डिग्री ले ली, अब तेरे को मालिक बनने के लिए कोई रोक नहीं सकता, तो मैंने एक स्टेप ले लिया, आई कैन बी आउट फ्रॉम द एयरफोर्स, और अब इस डिग्री का मैं लाभ उठाऊंगा। दोस्तों, उस डिग्री का लाभ उठाने की मैंने हिम्मत करी। जब तक आपके पास डिग्री मलकाना नहीं होती, MBA मलकाना नहीं होती, तो आप कभी भी सर्विस मत छोड़ देना। सर्विस में रहते हुए जिस जगह काम करो, लोग ये कहना शुरू कर दे आप पागल हो अपनी ड्यूटी के प्रति, आप क्या मालिक हो यार, आप क्यों इतना काम करते हो, आपकी क्या कंपनी है? तो मालिक की सोचो कि आपके पास डिग्री मलकाना आ गई। और उसके बाद जब मैंने देखा और काफी अध्ययन किया कि ये काम क्यों न उठाऊं, हमारे भाषा में बिजनेस में सिखाया जाता है कि मोर पेन मोर गेन। जिस व्यवसाय में ज्यादा पेन होगा, गेन वही मिलेगा, उसी के हाथ लगाओ। तो उस टाइम शिफ्टिंग वाज वेरी पेनफुल, तो मैं सोचा कि इसको ही गेनफुल बना लेते, तो मैंने इसलिए शिफ्टिंग में हाथ लगाया। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। हेलो सर, और एक बात पूछनी थी। अगर आपके मूविंग टाइम पे जब ट्रक वगैरह मूव होते हैं, तो अगर कुछ डैमेज हो जाएगा तो उसको फेस किस तरह से करेंगे? 2 तरह के डैमेज होते हैं, एक तो ह्यूमन एरर से और एक होता है इंसिडेंटल, लाइक एक्ट ऑफ गॉड। किसी तरह गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, किसी तरह से कोई अचानक पुल टूट गया, बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, तो इस तरह का एक्सीडेंट होता है। तो ह्यूमन एरर, उसके ऊपर एक हमारी कमेटी बैठती है कि गलती क्यों हुई, कहां से शुरू हुई, किसने की। तो उस गलती को हम आगे गलती ना हो उसके ऊपर उसके कारण ढूंढते हैं और परमानेंट रूल का हिस्सा बनता है गलती नंबर 100, और ये दोबारा न रिपीट हो, पूरे हिंदुस्तान में फैलती है। दैट इज कॉल्ड जीरो मिस्टेक। हमारा एक डे होता है, दैट इज कॉल्ड जीरो मिस्टेक डे। उसमें चर्चा करते हैं दोबारा ये गलती रिपीट ना हो, क्योंकि आज जयपुर ने कर दी, कल वही गलती गुवाहाटी ने करनी होगी, और कुछ दिन के बाद वही गलती पोर्ट ब्लेयर कर देगा, वो फिर मेरा श्रीनगर ऑफिस कर देगा या त्रिवेंद्रम ऑफिस कर देगा। तो हम सब ऑफिसों में उस गलती के बारे में बता देंगे, ये गलती हुई है, इस कारण हुई है, कभी ना हो। हमारा एक अपना सिस्टम है, क्योंकि क्लाइंट अगेन हम कहते हैं कि भगवान है, तो उसको हमारा एक, जब भी हम बुकिंग करते हैं तो हर आइटम की वैल्यू डालते हैं, उस वैल्यू के हिसाब से उसकी भाड़ा तय होता है, और उस भाड़े के हिसाब से हम उससे जब भी कुछ भी होता है तो क्लाइंट कभी भी उस गलती का सफर नहीं करता। ही गेट्स हिज अमाउंट एज पर हिज डिक्लेयर्ड वैल्यू। जैसे 3,000 रुपए का उसका कोई टेबल टूट गया तो ही गेट 3,000 रुपीज। उसका एक बार की बात है, एक कंसाइनमेंट श्री राम ग्रुप वाले या उषा ग्रुप वाले थे, बम्बे से दिल्ली आ रहे थे, और एक उन्होंने बहुत बड़ा संदूक लिया था, पीतल का संदूक, जो पुराने जमाने में दादा दादी के पास होता था, ऐसा पीतल और लकड़ी का बना हुआ। वो उदयपुर के पास हमारी गाड़ी आई, दूसरी गाड़ी के साथ हेड कोलिजन हो गया और वो पूरी गाड़ी टूट गई, ड्राइवर भी एक्सपायर हो गया और संदूक के भी 100 पार्ट बन गए। जब यहाँ हम उनके घर में ये सूचना देने गए कि जी आपका संदूक ऐसे ऐसे टूट गया और आपको हम इसकी कीमत दे देंगे मगर आपका संदूक नहीं आएगा, तो ये बताने के लिए जब गया तो उसकी वाइफ ने कहा कि अरे भाई वो आ गई गाड़ी क्या? बोला नहीं जी वो नहीं आई, मैं तो केवल जस्ट आपका घर देखने आया हूँ। अरे मेरा बहुत बढ़िया। तो उसकी भावना ऐसी थी कि संदूक को यदि वो कहता कि टूट गया, टुकड़े हो गए, तो वो वहां रो पड़ती थी वो लेडीज। उसने इमीडिएटली बाहर निकलकर फोन किया मेरे बम्बे ऑफिस से कि ये एक संदूक इन्होंने बाइकला एग्जीबिशन ग्राउंड से लिया है। क्योंकि मीनवाइल पूछ लिया था कि वो संदूक आपने कहां से लिया है। वो 1,10,000 रुपए का संदूक था और आप जल्दी जाओ, शायद इसी टाइप का संदूक और कोई भी पड़ा होगा। और मेरे आदमी ने दूसरा संदूक 1,10,000 में लिया, इमरजेंसी उसको एयरलिफ्ट किया, देन द संदूक वाज गिवन नेक्स्ट 3 डेज के अंदर उसको दे दिया और उसको फिर कहा कि मैडम ये संदूक वो नहीं है जो आपने बुक किया था। बोला नहीं नहीं ये तो वही है। बोला डिजाइन वही है, लिया उसी जगह पर है, बट वो संदूक नहीं है, उसका तो मर्डर हो चुका था उदयपुर के पास में। देन सी क्राइड, रोई, अरे आप इतना भी काम करते हो। तो आज ये सारी चीजें कहते हैं ब्रांड, व्हाट इज अ ब्रांड? ब्रांड इज ए ट्रस्ट। तो हमने एक ट्रस्ट जीतना था लोगों के, हिंदुस्तान के दिलों के अंदर। तो
इस तरह से कर कर हम अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को रिजोल्व करते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं, उसको नॉट ओनली वी मेक सेटिस्फाई, विल डिलाइट देम। ये हमारी सारी करने की प्रक्रिया है। ओके, और एक बात पूछनी थी, आप जो गाड़ियां हैं आपके पास, आपने बताया 1500 ट्रक्स है, तो आप यू आर द ओनर और आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेते हो? ये तो हम एज ए ओनर है, हमारे नाम से आरसी है, बट हजारों ट्रक हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी लेते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़े जी अब। हेलो सर। जी सर, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। लाइक अभी अगर हम कोविड-19 का सिचुएशन देखें तो काफी सारी कंपनी ने काफी सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया, लाइक फायर कर दिया जॉब से। लाइक अभी बीच में मैंने सुना एक्सेंचर ने भी 25,000 लोगों को निकाल दिया। सो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में और स्पेसिफिकली आपके कंपनी में इस बात को लेकर क्या हुआ? लाइक कुछ लोगों को फायर किया गया कि सेम लोगों को साथ में लेके चले फॉर 2 months विदाउट एनी वर्क? नहीं, अप्रैल मई का तो सब लोग अपने अपने घरों में थे, कहीं कोई काम ही नहीं हुआ। मई के अंदर सबको रिकॉल किया गया कि अब अपनी ड्यूटी ज्वाइन करो क्योंकि अभी काम शुरू होने वाला है। जिसमें से कई तरह के लोग मिलेंगे आपको। ए वो क्लास जो आपके कंधे से कंधा लगाकर साथ चलेंगे। ठीक है जी, मई में कॉल किया कंपनी ने, जैसे बॉर्डर पे वार के अंदर बुलाते हैं लोग, कम ऑन जेंटलमैन नाउ इट्स अ वार। तो कुछ लोग कहेंगे कि मेरी पत्नी बीमार है, भाई बीमार है, मैं आऊंगा नहीं, मैं तो एक ही हूँ, एक ही पत्नी है, एक ही बेटा है। कुछ लोग दौड़कर आ जाएंगे। तो उसमें से हमने कैटेगरी बनाई गई, कौन आदमी जिसके पेट में भूख है, कौन आदमी जो कंपनी के साथ चलना चाहता है। उनको तो इमीडिएटली हमने भी आस्क्ड देम कम ऑन जेंटलमैन, क्योंकि 100% के बजाय 60% काम रह गया था। तो उनको हमने इमीडिएटली मई के अंदर डेप्यूट कर दिया, कम ऑन स्टार्ट। कुछ लोग जो हल्का हल्का बोल रहे थे उनको कहा कि आप हमारा स्टार्ट कर लेना सितंबर में। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो आज तक भी कहते हैं कि सब मैं तो देखो अच्छा है, माँ नहीं आने देती, बाप नहीं आने देता। उन्हें कहा कि आप घर में अपना आराम कर लो, जब आपका मन हो तो उसके बाद चर्चा कर लेना सेकंड प्रायोरिटी में। तो जिन लोग काम करने वाले इच्छा है ना, उसको कोई भी एम्प्लॉयर निकालता नहीं कभी भी। वो कैटेगरी करता है लोगों की, पर वो अपने आप क्या बोलता, वो अपने आप मन में क्या होता है कि मेरे को निकाल दिया गया। ऐसे ऐसे लोग हैं। आज जो हमारे एक क्लास हीरो थे, हमने उनको स्पेशली फ्लाइट की टिकटें बनाई है कि आप आ जाओ, ये 50 लोगों को ये पहले एडवांस पे टिकटें बनाकर भेज दी। तो एम्प्लॉयर कभी भी किसी को नहीं निकालता। अलबत्ता वो आदमी बढ़िया हो, भीड़ का हिस्सा हो, उनको कोई पूछता नहीं हो, भीड़ का हिस्सा रहते, कभी आओ कभी जाओ। न तो एम्प्लॉयर उस पर ध्यान देता, न कोई देता। तो हमारी कंपनी ने तो उनका इतना हाई रिगार्ड्स किया। द पीपल हु आर विद अस, हु विल बी विद अस, जो हल्के हैं, क्योंकि हमारी सर्विस इंडस्ट्री है। हमने आपका काम ले लिया कि हम 24 तारीख को आपके घर में पैकिंग करने आएंगे। अब धीरे से कहूं कि सर वो क्या है कि मेरे एम्प्लॉय नहीं आए, वो है उनके घर में कोविड का डर लग रहा था, उसकी माँ ने नहीं आने दिया, तो आप क्या कहोगे? अरे आपकी जैसी कंपनी क्यों डर लिया? तो हम तो आप लोगों के गुलाम हैं, नौकर हैं इस सर्विस इंडस्ट्री के अंदर। तो हमने इस तरह की कैटेगरी करी। कुछ लोग दे आर हाईली वी प्रमोटेड देम, कुछ लोग नॉर्मल, कुछ लोगों को हमने भी कहा कि थैंक यू वेरी मच, अभी रेस्ट करो, जब बाजार बढ़िया होगा तो आपको बुला लेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। I think Good afternoon, sir. Doctor, now we should conclude, so yes, conclude the session. एक क्वेश्चन ले ले और मेरा ईमेल आईडी यहाँ टाइप कर दें अलवालिया जी, जिसके कारण किसी का भी कोई भी स्टूडेंट का, कोई हमारे बंधु का कोई भी क्वेश्चन हो, दे कैन राइट ऑन द ईमेल आईडी, दे ऑल मोस्ट वेलकम। कुछ भी अपना कैसा भी क्रिटिकल क्वेश्चन दिमाग में हो, प्लीज शेयर विद मी, आई विल ट्राई माय बेस्ट। आपको जहां तक मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कोशिश करूंगा उसको आप लोगों को कहीं ना कहीं उसका जवाब दूं। और एक और लास्ट क्वेश्चन जो था ये लेकर फिर हम कंक्लूड करते हैं। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि एक ऐसा भी टाइम था जब आपकी कंपनी भी एक स्टार्टअप फेज में होती थी। ओके, तो उस टाइम सर, जैसे इंडिया में हम जानते हैं सर कि करप्शन और ब्यूरोक्रेसी का बहुत इशू रहता है। स्टार्टअप्स में स्पेशली बहुत प्रॉब्लम्स फेस होते हैं बिकॉज ऑफ करप्शन और कुछ ना कुछ ब्राइबिंग, ये सब होता है। अगर आपकी कंपनी में क्या कभी ऐसा कुछ आपको फेस करना पड़ा, और अगर आपने किया हो तो आपके पास क्या एडवाइस है कि इसको कैसे ओवरकम करे इन तरह के चैलेंजेस?
आपको ये जो चैलेंज होता है ना ब्यूरोक्रेसी का, जो हिंदुस्तान का, मतलब एक बार नहीं, शायद आई थिंक मैं सोचता हूँ कि एवरी डे ही हम कहीं ना कहीं इसके भुगतभोगी बनते हैं और पीड़ा भी होती है, मगर उसको हमने एक बिजनेस का हिस्सा मान लिया। क्योंकि सरकार के साथ मैं कई कमेटियों में मेंबर हूँ और लड़ाई भी बहुत लड़ी। आज यदि गूगल में दबाओगे कि मेरा नाम और सीबीआई और सोनसो, तो मालूम हुआ कि 10-12 लोगों को मैंने अपने घर में लोगों को बिठाया है, दैट टू द वेरी हाई पोस्ट। मगर वो एक एंड उससे आप कुछ किसी करप्शन को खत्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सबके खूनों में भरा पड़ा। इट हैज टू बी, करप्शन सिस्टम से खत्म होगा। मैंने फिर एक कमेटी के अंदर एक जीरो करप्शन इन भारत सिस्टमैटिकली कैसे खत्म हो, और एक, क्योंकि जब करप्शन जब होता है तो हम भय से युक्त रहते हैं। भय, हर बार भय, मैं ट्रक ड्राइवर रोड पे जाएगा भय में जाएगा, हम किसी आरटीओ के ऑफिस में जाएंगे तो भय में जाएंगे, किसी पुलिस के ऑफिसर में जाएंगे तो भय में जाएंगे। अरे हम सब कुछ देने वाले दाता के रूप में हम हैं, पब्लिक सर्वेंट, जो पब्लिक का सर्वेंट है, यानी कि हम पब्लिक है, वो सर्वेंट है, और हम हमारा सर्वेंट, और हम उससे डरते हैं। ये तो बड़ी नई की चीज थी, बड़ा दर्द होता है। तो इस तरह की चीजें हमारे भी बहुत बीच में आई। कई सुझाव मैंने सरकार को दिए। एक सुझाव आप लोगों से शेयर करता हूं, आप लोग यंगस्टर है और मैं आप लोगों को भी कहता हूं कि ऐसे ऐसे नए नए सुझाव बनाकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी है, कोई भी पति, सबको लिखते रहो। पता नहीं कब कौन सी चीज आपकी किसी की समझ में आ जाए, कौन सी संडे के वाले दिन प्रधानमंत्री आपके अपनी चर्चा के अंदर ये कहते कि ये सुझाव तो बहुत बढ़िया था। क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री इस टाइम पर आपके सुझाव देखता है, सुनता है और चर्चा भी करता है, कहीं ना कहीं एजुकेट भी हो जाए। जैसे हमारे आरटीओ रोड के ऊपर गाड़ी एक्सीडेंट, रोड के ऊपर जब गाड़ियां जाती है तो हर जगह एक आरटीओ की पोस्ट होती है। आरटीओ मतलब रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, जो चेकिंग करता है, एक विंडो के अंदर चेक करता है। चेक करने के बाद वो, आप समझते हो कि वो ठप्पा मारने से पहले क्या लेता होगा क्या नहीं, क्योंकि हमारे डाटा में आता है कि 26,400 करोड़ रुपए रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से पूरे हिंदुस्तान में इकट्ठे होते हैं। 26,400 अनऑफिशियली बात कर रहा हूं, ये रसीद वाले नहीं है, लोगों के घरों में जाते हैं। क्योंकि जब भी किसी रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पे छापा मारते हैं तो छोटा सा इंस्पेक्टर या बैरियर उठाने वाला चपरासी, वो भी 5 करोड़ का मालिक मिलता है। तो इस तरह से जब ये वहां पर जब वो दिखाएगा अपनी आरसी बुक या पेपर, तो वहां पर वो एक पर्ची से काटते हैं कि गाड़ी का नंबर, कौन सी गाड़ी ने चेक कराया और किस इंस्पेक्टर ने चेक किया और कितने बजे चेक किया, वो थोड़ी स्लिप मिलती है। तो मैंने एक सुझाव दिया भारत सरकार को कि जहां चेक होते हैं उससे 100 फीट आगे एक इलेक्ट्रॉनिक्स बैरियर बना दो, जैसे मॉल के अंदर होता है। और जब बैरियर के पास गाड़ी जाएगी तो वो लेफ्ट हैंड साइड में एक प्लेट हो या कोई ऐप हो, उसके अंदर जब तक वो अपना चेक कराने का जो पास बना है उसका वो नंबर डाले। जैसे उसका पास का नंबर है P268, तो जब उसने 268 डाल दिया, डालते ही उसके टाइम 3 लाइट जले, एक लाल, एक ऑरेंज, एक हरी, और नीचे लिखा रहे कि कोई भी एक लाइट पे हाथ रखोगे तो आपका ये बैरियर खुलेगा, मगर लाल पे रखने से पहले ये देख लेना कि सामने वाला अफसर आपको बहुत पैसे खाए, चोरी ली और तंग किया। हरे पे रखना मतलब आपसे बहुत नम्र व्यवहार किया और 1 रुपया भी नहीं लिया, हाथ जोड़कर आपको अपना ग्राहक समझकर आपको पेपर चेक कर दिए। और जो ऑरेंज है, कुछ लिया, कुछ दिया और आपको छोड़ दिया, मगर तीनों में से एक के ऊपर हाथ दबाना पड़ेगा, तब जाकर ही गेट खुलेगा। गलती से वो बदमाश था, उसने खूब पैसे लूटे, तो वो लाल पे दबाएगा। और इसी तरह ये जो उसके आदमी के नंबर धीरे धीरे करके उसके अकाउंट के अंदर जुड़ते जाएंगे। और इस बैरियर का जो मैनेजमेंट हो वो आप जैसी सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी के पास हो या इन्फोसिस के पास हो या टाटा कंसल्टेंसी के पास हो, नहीं तो ये अपना वापस हिसाब किताब लगाकर फिर दोबारा कुछ ना कुछ स्क्रू लगाकर दोबारा ठीक कर देंगे। तो उनका जो रिकॉर्ड है ये कहीं इकट्ठा होता रहे, और जब किसी का रेड इतना ज्यादा हो जाए तो सीबीआई को उसको केस दिया जाए या इंटेलिजेंसी को केस दी जाए या एंटी करप्शन को केस दिया जाए, उसको सस्पेंड किया जाए। ऑटोमेटिकली कंप्यूटर सस्पेंड करे, सिस्टम, आदमी ना करे। और एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि उनको ये पता है
कि ड्राइवर के हाथ में इतनी ताकत है बटन दबाने में, जैसे अंगूठे में ताकत है, तो आपको देखो एमएलए एमपी आके घर में हाथ जोड़ता है कि मेरे को वोट देना। इसी तरह ये लोग उन ड्राइवरों को हाथ जोड़ेंगे, ठोडी पकड़ेंगे, भाई मेरा प्रमोशन 3 साल से नहीं हुआ, आपके आगे हाथ जोड़ू, हरा दबा देना, मैंने आपसे कुछ नहीं लिया, चाय पियोगे क्या, लस्सी पियोगे, गांव से लाया हूं, ये भी खा लो। तो जिस दिन ये शुरू हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि मेरा हिंदुस्तान राम राज्य है, जो गांधी जी की कल्पना थी ना, राम राज्य है, ऐसे राम राज्य होगा। ये तो एक मैंने रोड हाईवे के बैरियर की बात करी है। इसी तरह इनकम टैक्स के ऑफिस में आप जाओगे, वहां भी ये गेट पास बनता है, और मिलने जिसके ऑफिसर के पास गए उसका नाम लिखा जाता है, तो मैं गेट पास लेकर ऑफिसर के पास जाऊं, जब वापिस आऊं तो वो मेरा गेट, एग्जिट गेट अलग होना चाहिए, इन गेट नहीं होना चाहिए। और एग्जिट गेट के ऊपर भी एक बोर्ड लगे कि आप जब दरवाजा खुलेगा सबसे पहले अपना गेट पास नंबर डालो। गेट पास नंबर डालते ही क्या हो गया कि इंस्पेक्टर का खाते में उसका चला गया, और कितने बजे मिला, कौन मिला, वो आ गया। फिर 3 लाइटें आएगी, हरी, लाल, ऑरेंज। आपसे अफसर ने अच्छी बात करी तो हरी दबा दो, पैसे छोड़े मोड़े लिए तो ऑरेंज दबा दो, और बहुत बड़ी करप्शन मांगा तो रेड दबा दो, मगर दबाना पड़ेगा, अदरवाइज दरवाजा नहीं खुलेगा। और इसी तरह उस इंस्पेक्टर, ऑफिसर या कमिश्नर के खाते में रेड लाइट, हरी, ये माइनस प्लस नंबर चलते रहेंगे, एंड अगेन सेम प्रोसेस, इंक्वायरी शुरू हो जाए। और इस तरह ये प्रोसेस के कारण ये घूस वाले लोग ग्राउंडेड हो जाएंगे, उनके भेद खुल जाएंगे, और फिर आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। और फिर हम जो कल्पना करते हैं राम राज्य की, शायद कभी ना कभी ऐसा हो। ये मेरी अपना एक था, तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को ये सूचित किया, एक एक्नॉलेज तो आ गया कि आपकी सुझाव बहुत बढ़िया है, हम इस पे देखेंगे। अब कब होगा शुरू, भगवान जाने। थैंक यू सर। Dr. Santosh Sonone, are you there? Hello. Hello. Sir, I request you to please give the vote of thanks, sir. Yes, so thank you, sir. Thank you for your valuable thoughts. And I think these thoughts are really inspiring for the student. So I am really thankful to Mr. Ramesh Agarwal for his time, who has taken out time for our students, and really whatever 4 pillars you are told will be really going to be helpful for the student, even if they follow one principle out of it. And of course, to get the success in life, definitely one has to be a little principle oriented. So definitely I will say that students should follow the principles and keep their promises, and that is how they will be successful in their life. I am also thankful to Mr. Jaswinder Singh Ahluwalia for giving us opportunity to interact with Ramesh Agarwal sir. So thank you Ahluwalia sir, and looking for your cooperation in future also, because we have many students from other institutes also, and they will be also happy to be a part of such a beautiful session, whatever we have got today. I had seen that students are really happy about the session, and they had interacted with Agarwal sir also regarding their issues or regarding their questions. So thank you, sir. Thank you for your contribution, and looking for your contribution and connect in future also. Thank you. Thank you, Dr. Saab. Thank you all students. Wish you all the best. Have a bright future. Thank you, sir. Thank you, Agarwal sir. Now students should continue with their sessions. Whatever lecture sessions they are having, they should continue with that.